चलो लेट्स स्टार्ट. ओके. हेडिंग डालो. दिख रहा है सब कुछ? इज एवरीथिंग विजिबल? Yes, miss. Yes, miss. Please be very friendly to me. Speak out to me. If you guys don't speak, how would I get to know that you are understanding or not? My voice is audible or not? Please be very responsive and talk to me during the class. Okay? Okay. Yes, very good. Please talk to me. Acha, we know that there are three types of matter, right? Solid, liquid, and gas. यही पता है ना? We know that only. So solid, liquid, and gas. There are three types of matter. But basically, don't write this one. It is solid and fluid. Fluid consists of two types, that is liquid and gases. Okay, Shraddha, Yes, please miss. unmute yourself. Unmute yourself. Talk to me during the whole class. Don't mute yourself. You are only 2 in number, so I don't think there will be any noise. Background noise तो नहीं है किसी के घर पे? No, miss. नहीं, तो चलो फिर unmute yourself. Talk to me during the whole class. Okay, Siddharth, you too. Yes, miss. Unmute yourself. Okay, हाँ, चलो. So draw this one also. Pressure on liquids में हम लोगों को पता है there are three types of matter: solid, liquid, and gases. But actually, liquid and gases comes under fluids only. Fluids के अंदर में ही हमारा दो मैटर होता है, liquids and gases. इसीलिए as a whole sum we can say the matter are of two types: solid and fluid. Fluids में आता है हमारा liquid and gases. Fluids का definition क्या होता है? Fluid means those substances which can flow. Okay, जो flow कर सकता है उसको क्या कहते हैं? Fluid कहते हैं. Okay, fluid. अब देखो जैसे solid है. Solid means this is a pen. Okay, ये एक पेन है. तो अगर हम इस पेन को इस स्केल के ऊपर रखेंगे, तो क्या ये पेन इस स्केल का शेप लेगा? Will this pen take the shape of the scale? No. Miss. No. If I put this pen in this container, I'll put this in this container. Will this pen take the shape of this container? No, No. miss. No, right? But if I put a glass of water, I take a glass of water and I put this in this container, it will take the shape of this container. Yes, miss. Correct. Acha. Similarly, if gas means gas. How can we take a gas? अगरबत्ती, सबके घर में अगरबत्ती जलती है. Yes, miss. हाँ, तो अगर अगरबत्ती का जो धुआं, जो स्मोक निकलता है, the smoke coming out of an incense stick, if we capture it and put it in this container, will it take the shape of this container? Will it get accommodated in this container? Yes, हो miss. जाएगा. Yes, it will get accommodated. That means fluids means the things that can simply flow. Gas flows from one direction to another. एक यहाँ पर अगर हम एक गिलास पानी डाल देंगे, it will start flowing. If we light an incense stick here, the gas coming out of it will flow. जो flow करने लगे और या फिर उसको हम जिस भी container में डालें, it will automatically take the shape of that container. Those substances are basically known as fluids. Am I clear on my point? Yes, miss.
पक्का दोनों जनों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? No, miss. No, miss. पक्का ना? आगे बढ़ू? Yes, मैं miss. आगे बढ़ू? ओके ओके। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो यहाँ पर। दिख रहा है ना? Yes, miss. लिक्विड प्रेशर। सब नोट्स बनाओगे? हाँ, दोनों नोट्स बनाओगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कौन से स्कूल से हो? मैम मैं लॉरेटो कॉन्वेंट से हूँ। ये कौन बोला? श्वेता Yes, मैम। और सिद्धार्थ? Miss, मैं सेंट पैट्रिक से हूँ। सेंट पैट्रिक से, मतलब दोनों डिफरेंट स्कूल से हो? Yes, मैम। Yes. ओके चलो, नो इश्यूज। लिक्विड प्रेशर, दोनों नोट्स बनाओगे बिकॉज बीच बीच में आई एम गोइंग टू चेक योर नोट्स। ओके? Okay, किसी भी miss. दिन किसी का भी मैं नोट्स मांग लूंगी। चलो, तो राइट, ये हेडिंग डालोगे। ये लिखा, यहाँ तक लिखा सबने? No, मैम। लिखो Okay, miss. लिखो, ये प्रेशर ऑन लिक्विड हेडिंग डालोगे। उसके नीचे ऐसे लिखोगे सॉलिड प्लस फ्लूइड, फ्लूइड के नीचे लिक्विड एंड गैसेस। स्टार्ट राइटिंग whatever I write on the page, my page na, you continuously start writing with me. If I say that you don't have to write this portion, only then don't write. Otherwise, whatever I write on my page, continuously start writing. सिद्धार्थ, तुमने लिखा बेटा? No, miss. लिखो। अरे लिखना तो पड़ेगा ना। सिद्धार्थ, तुम इतना धीरे ही बात करते हो क्या एक्चुअल में भी? No, miss. मेरे माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। You comfortable with Hindi or shall I speak in Bengali? আমি বাংলায় কথা বলবো কি? No, miss. Hindi comfortable? Will you be able to understand with English and Hindi? Yes, miss. Okay, okay dear. Completed, miss. हो गया। सिद्धार्थ हो गया? Yes, miss. ओके चलो, ये डालो। उसके बाद हेडिंग डालो लिक्विड प्रेशर। क्या मेरे साथ साथ लिखो, फ्लूइड pressure is a measurement of the force per unit area. अच्छा, प्रेशर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? Force per unit area. Thrust, फिर से बोलो। thrust per unit area is called pressure. फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिमिलरली अगर फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो फ्लूइड प्रेशर भी क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होगा। अगर नॉर्मल प्रेशर तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फ्लूइड, लिक्विड और फ्लूइड प्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी को तो प्रेशर नहीं बोलेंगे ना। मेरी बात समझ रहे हो? अगर नॉर्मल प्रेशर तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो लिक्विड प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि लिक्विड का प्रेशर है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल देंगे कि वो प्रेशर हो गया यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा ना। इसमें भी तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? Yes, miss. दोनों को क्लियर? सिद्धार्थ क्लियर? ओके, लिख लिया दोनों ने?
Yes, Yes, miss. miss. अच्छा, तुम्हारा एक और है ना क्लासमेट, वो अभी आया नहीं है, आई नहीं? मैम 2 और क्लासमेट है। 2 और हैं, वो लोग कहाँ हैं? किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है क्या तुम लोगों का? नो मैम। आए नहीं दोनों, दे आर मिसिंग देयर क्लासेस, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलो नीचे से लिखते हो, नीचे लिखो फिर। Since fluid has no definite shape, its pressure applies in all direction. लिखा? Yes, miss. यस मिस। लिखा दोनों ने? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप। कैसे शेप डेफिनेट नहीं है? फिर तो बताओ। मैम बिकॉज कि वो जो भी कंटेनर में डाल दिया जाए वो अपना चेंज कर लेता है शेप, उसका कोई डेफिनेट शेप। वो जैसा कंटेनर में डालो उसी का शेप को ले लेता है, तो इसका कोई शेप तो होता नहीं है। तो जब इसका कोई शेप नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा कि वो हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर, प्रेशर अप्लाई करेगा। कैसे करेगा मैं बताती हूँ। ये मान लो ये ग्राउंड है हमारा, ओके। ग्राउंड पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, तो इसका जो प्रेशर होगा इस ब्लॉक का, ये सॉलिड है तो ये सिर्फ प्रेशर इस सरफेस पे देगा। इट विल गिव प्रेशर ऑन दिस सरफेस ओनली, देगा नीचे में, ठीक है। और अगर ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में सपोज आई फिल्ड वाटर टिल हियर, यहाँ तक मैंने वाटर भर दिया, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेशर देंगे? वो प्रेशर इस डायरेक्शन में भी देंगे, इस डायरेक्शन में भी देंगे, इस डायरेक्शन में भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, मतलब हर एक पॉइंट पे देंगे। तो water means fluid is applying force, applying pressure on even the walls of the container and towards the bottom of the container. That means these water molecules are applying pressure on each and every part of the container. Clear? यस मिस। क्लियर हुआ? कोई डाउट है दोबारा पूछो, मैं बताऊंगी। मैं 10 बार बताऊंगी, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ यू आस्क मी क्वेश्चन। अगर तुम सब चीज समझ जा रहे हो ना, तुम लोग अगर सारी चीजें समझ रहे हो, तो मुझे वो क्लास लेने में मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब तुम नहीं समझो और मैं फिर समझाऊं। बात समझ में आई? यस मिस। पूछो मुझे, मेरे से क्वेश्चन पूछो, पूछो कहाँ समझ में नहीं आया। आस्क मी अ क्वेश्चन। Miss. पूरा समझ में आया? मान लो कि एक गैस ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। सपोज आई टुक अ बॉटल लाइक दिस, ओके। और मैंने इसमें अगरबत्ती जला करके इसमें वो जो स्मोक है वो छोड़ दिया, बंद कर दिया, कैप बंद कर दिया इसका, ठीक है। अब लेट मी नो कि इसमें डायरेक्शन कहाँ जाएगा, प्रेशर कहाँ जाएगा, प्रेशर का डायरेक्शन किधर होगा? श्वेता बोलो। मैम इन ऑल साइड, उसके वॉल्स में भी होगा, बॉटम में भी होगा, सब जगह वो प्रेशर अप्लाई। यहाँ पे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। सिद्धार्थ होगा? Yes, miss. होगा? हाँ, Yes, miss. यस। चलो, तो इसका मतलब वही है ना, since fluid has no definite shape, its pressure applies in all direction. This point is completely crystal clear to you guys, यस है मिस। ना?
चलो आगे बढ़े। Yes, miss. चलो हेडिंग डालो, फैक्टर्स affecting liquid pressure. Miss, हाँ, liquids don't give pressure upwards. how the liquid will give the pressure upwards? Let me know. Its surface is still here only, na? It is having its surface still here. Is it in contact with any of the walls towards the up in the upside? Is it in contact with anything towards the upside? If I'm having a jar here and I'm filled with water, तो क्या इस डायरेक्शन में अपवर्ड में क्या मेरा किसी भी कंटेनर के किसी वॉल से क्या कांटेक्ट है? Am I having any contact? No. Am I having? Siddharth, speak out. No, miss. No, there is no contact. So since there is no contact, so where would you give the pressure? आपको प्रेशर देने के लिए कॉन्टैक्ट तो चाहिए ना, एक बॉल चाहिए, आप प्रेशर दोगे कहाँ? एक ऑपोजिट सरफेस पे तो दोगे ना। तो प्रेशर अगर तुम्हारे पास सरफेस ही नहीं है तो तुम प्रेशर कहाँ दोगे? यहाँ पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है। बात समझ में आई? Yes, miss. पक्का? और यहाँ गैस में क्या कर रहे हैं हम लोग पूरा? अब गैस का क्या है, लिक्विड से थोड़ा सा डिफरेंट केस इसलिए है क्योंकि गैसेस flow in a very rapid way. Their intermolecular forces of attraction is very weak. You have studied this thing. I hope you know about intermolecular force of attraction. Yes, You miss. know? हाँ, so intermolecular force of attraction of gaseous particles is very weak. That means we need to close the tap. We need to close the cap of this container so that the gas does not get evacuated. And after closing the tap, the gas molecules move randomly in every direction. Unlike the water molecules does not move randomly in all directions, but they move randomly in all directions. That's why they are applying pressure to the upward also. But in this water molecules, they are not moving randomly. They are in a stable position. That's why जहां जहां इनका contact है towards the three surfaces, they are applying pressure. But these molecules are in contact with all the four walls of the container, so they are applying force in all the four walls of the container. Clear? Yes, miss. Yes, श्वेता, clear? Okay, okay. चलो लिखो, हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर. Shall I dictate? yes, You guys can write. Yes, You can miss. write now. Okay. Right. यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करो. The pressure at a point the pressure at a point हो जाएगा तो बोलना. Yes, miss. That's why I asked you guys to unmute yourself. The pressure at a point in a liquid depends on the following two factors. The pressure at a point in a liquid depends on the following two factors. Number one, first one, depth of the
फ्लूइड लिखा। Yes, miss. Yes, miss. अब इसके बाद यहाँ पर एक हाइफन डालो और जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ वो लिखो। देखो, अ फ्लूइड एक्सर्ट more pressure at greater depth. A fluid exerts more pressure at greater depth. DEPTHS. Depth मतलब गहराई होता है ना। Yes, miss. Yes. A fluid exerts more pressure at greater depth. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, deeper in a fluid comma, all of the fluid above it results in more weight. Deeper in a fluid, all of the fluid above it results in more weight pressing down. Miss, can you please repeat after result in? Results, RESULTS, results in more weight pressing down. Pressing मतलब दबाना, PRESSING, pressing down. Miss, the first word was deeper. Deeper, DEEPER. हो गया? Yes, miss. Yes, miss. Deeper in a fluid, all of the fluid above it results in more weight pressing down. अब मुझे बताओ इसमें कि कंटेनर ए और कंटेनर बी दोनों को दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, miss. Yes, miss. जो प्रेशर कंटेनर ए में होगा और जो प्रेशर कंटेनर बी में होगा, ज्यादा कौन से कंटेनर में होगा? Container A. और कंटेनर बी में नहीं होगा? उसमें कंटेनर ए से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका वेट कम है। उसका वेट कम है। वेरी गुड। और कोई रीजन? डेप्थ कम है। वेरी गुड। क्लियर हुआ? मैंने अभी क्या लिखाया? अभी जो मैंने पॉइंट लिखाया आपको, वो तो वही लिखा है ना बेटा जो भी आपने बोला। पढ़ो एक बार क्या बोला है। A fluid exerts more pressure at greater depth. बोला है। नॉर्मल सी बात है। अगर मैं अपने सर पर 5 अच्छा, आप सबके पास वाटर बॉटल्स हैं? Yes, miss. वाटर बॉटल्स हैं। बड़े वाले वाटर बॉटल्स भी होंगे, छोटे वाले भी होंगे। Yes, miss. तो अगर अपने सिर पे आप एक काम करते हैं,
सिद्धार्थ ले लेता है छोटा वाला वाटर बॉटल और श्वेता ले लेती है बड़ा वाला वाटर बॉटल, अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं हम लोग दोनों, तुम लोग दोनों। ओके, तो ज्यादा प्रेशर या ज्यादा वेट, ज्यादा तकलीफ किसको होगी? श्वेता को होगी, क्योंकि उसने ज्यादा बड़ा वाला रखा है वाटर बॉटल। तो इसका मतलब क्या है? उसका वो फ्लूइड, उसमें फ्लूइड ज्यादा है मतलब वही तो है, अ फ्लूइड exerts more pressure at greater depth। डेप्थ मतलब इसकी गहराई ज्यादा है। श्वेता का वाटर बॉटल की गहराई मतलब उसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके पास जो लिक्विड का कॉलम है वो ज्यादा है, इसीलिए श्वेता को सिर पे यहाँ पर ज्यादा भारी लग रहा है और सिद्धार्थ को यहाँ कम लग रहा है, बिकॉज उसने छोटा वाटर बॉटल रखा है। छोटा वाटर बॉटल है तो उसका जो डेप्थ है लिक्विड का वो कम है कंपैरेटिवली टू ए। Am I clear in making my concept clear to you both? Yes. Crystal clear? Any doubt? Any kind of doubt? Miss, No doubt? ये बनाया Yes. दोनों ने? हाँ बोलो। Miss, if the depth in bottle is longer, but if the weight is less than container B, then it will exert more pressure. I am considering here that the two bottles are of same dimension. Means अगर इसका जो dimension जितना होगा, if this is 10 centimeter, means this length is 10 centimeter, this is also 10 centimeter. Means I am assuming that two water bottles, suppose example, I am not considering here the big one, I am considering here the same one. I am taking here the same two water bottles, okay? But the difference is I have filled it, this one up to this level, and I have filled this one up to that level. So the weight of the water, or you can call the depth, the gehrai, the depth of the water will create more pressure in this, and unlike the depth of water is here is very less, that's why it will create very less pressure here. Am I able to make my point clear to you? Yes, Miss. Pakka, any doubt? Siddharth, you having any doubt? Please speak up. Miss, I was telling कि हाँ, हाँ। कंटेनर ए में अगर मतलब कम वाटर हो पर डेप्थ ज्यादा हो कंटेनर बी से, तो बेटा, एक कंटेनर बात बताओ, जैसे तुम्हारा वाटर ज्यादा होगा, कम होगा, तो डेप्थ तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। अगर आप पानी ज्यादा इसमें भरोगे, ये तो ऊपर ही जाएगा ना, तो डेप्थ तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होता जाएगा ना। डेप्थ मतलब क्या है? ये हाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाइट इज ओनली द डेप्थ ना। तो आप कम वाटर से डेप्थ इसका ज्यादा कैसे कर सकते हो क्या? मिस, अगर मैं थोड़ा छोटा कंटेनर लूं और उसका तो वो कंटेनर पर डिपेंड हो जाएगा, वो अलग ही ज्यादा अलग, वो कंटेनर का भी फैक्टर उसमें आ जाएगा। वो हमारा अलग चैप्टर हो जाएगा, वो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जिसमें अगर मेरा वाटर ज्यादा होगा, वो हमारा जिसका डेप्थ ज्यादा होगा वो प्रेशर ज्यादा देगा, या जिसमें वाटर कम होगा वो प्रेशर देगा। आप कंटेनर की बात कर रहे हो ना, तो वहां पर जो प्रेशर होगा ना, that will be calculated with the area also, area of the container also। वो कंसेप्ट ही हमारा दूसरा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? उसमें हम लोग कंटेनर के डायमेंशंस को भी लेंगे, वो हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग सिंपली कि जिसमें ज्यादा पानी होगा, जिसका डेप्थ ज्यादा होगा, प्रेशर वो ज्यादा देगा, या फिर जिसमें पानी कम होगा, प्रेशर वो ज्यादा देगा। क्लियर? यस मिस। आप कंटेनर अलग करने की बात कर रहे हो ना, कि दूसरे कंटेनर में अगर हम लोग ज्यादा करके करें तो। यस मिस। हाँ, वो कंटेनर अगर हम लोग चेंज करेंगे, तो अब बात बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कंटेनर्स लेंगे, तो फिर हम लोग सिर्फ वाटर वाला फैक्टर तो नहीं ले सकते हैं ना। सिर्फ वाटर देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? उसके लिए तो फिर हमें कंटेनर का भी एरिया लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया।
We cannot only consider the force of the water, we will have to consider the area of the bottle also, right? कि वो एरिया कितना कवर कर रहा है जिस पर हम प्रेशर दे रहे हैं, वो भी लेना पड़ेगा ना, कि जिस सरफेस पे वो एरिया दे रहा है, फोर्स दे रहा है, उस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो वो फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो दैट वुड रिजल्ट इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. वो हम लोग शायद आगे पढ़ेंगे इसमें, अभी नहीं पढ़ेंगे. मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, मैं जो समझाना चाह रही थी? Yes, miss. आगे बढ़ू? ये Yes. वाला बनाया, दोनों ने बनाया, लिखा? Yes, miss. ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ. पहला लिखा था ना आप लोगों ने, अब डालो सेकंड पॉइंट. शायद आई एम आउट ऑफ द सेम, हाँ दिस वन. ये डालो और लिखो डेंसिटी. डेंसिटी डाल के हाइफन डालो. डाला? Yes, miss. अच्छा, तुम लोगों में से कोई हेजिटेट कर रहा है क्या टॉकिंग टू मी? आर यू गाइस हेजिटेटिंग? No, miss. पक्का ना? प्लीज बी वेरी फ्रेंडली टू मी. यू कैन आस्क मी any kind of question related to your studies, okay? Okay, miss. Okay, चलो डेंसिटी डालो. बोलूं मैं क्या लिखना है? Yes, miss. हाँ, लिक्विड प्रेशर हाइफन के बाद, यहाँ हाइफन के बाद लिखना शुरू करो. लिक्विड प्रेशर increases with the liquid pressure increases with the increase in density of the liquid. Liquid pressure increases with the increase in density of the liquid. लिखा? Yes, yes. अरे तो बोलो भैया, लिख लिया. सिद्धार्थ लिखा? Yes, miss. ओके. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी के बारे में आप लोगों को क्या पता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मीन फॉर्मूला पता है डेंसिटी का क्या होता है? पता है? पढ़ा तो होगा बेटा आप लोगों ने, फिर कैसे नहीं पता? श्वेता, श्वेता बेटा Yes. बोलो, डेंसिटी पता है क्या होता है? मैम डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो पता है. बोलो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. आपको अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो आप फॉर्मूला से ही तो डेफिनेशन बना सकते हो. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. मतलब पर वॉल्यूम, ये मान लो मेरा बॉटल है, ये मेरा बॉटल है, ओके चलो छोड़ो, ये मेरा बॉटल है, ओके. मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मेरे पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट पर जो छोटा 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 यूनिट से मेरा ये वॉल्यूम जो बना हुआ है, इस पर मेरा जो पार्टिकल है, मतलब मेरा जो वाटर है, मैं इसके ऊपर वाटर डालूंगी तो पर छोटा छोटा मतलब जितने पार्टिकल से बना है उस पर वो कितना प्रेशर डाल रहा है, मतलब वो
कितना मतलब वो मास कितना इस पे डाल रहा है, हर एक वॉल्यूम पे, छोटे छोटे वाले वॉल्यूम पे मेरा कितना मास आ रहा है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। बोलते हैं, कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया समझ में? यस आया समझ में? श्वेता, श्वेता नहीं समझ में तो बेटा बोलो, फिर से बताऊंगी मैं। मैम एक बार और आप समझा सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरा ये, मान लो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है। हाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे इसके ऊपर पानी डालना है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, रुको मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। एक लिक्विड का, एक लिक्विड है, एक बॉटल में एक लिक्विड है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब उस लिक्विड के, मतलब उस बॉटल में, ये बॉटल है, ठीक है? इस बॉटल में वॉल्यूम है, इस लिक्विड का वॉल्यूम है। तो एक जो छोटा छोटा जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का जो यूनिट है इतना छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिल के बना है ये लिक्विड। तो एक छोटे छोटे वॉल्यूम में कितना मास है, इसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी। इसको लिखना नहीं है कहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके ओके मैम। ओके। मतलब अगर तुम्हारा इस छोटे में, इस छोटे से यूनिट में बहुत ज्यादा मास होगा किसी भी लिक्विड का, तो वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर एक यूनिट वॉल्यूम में उसी लिक्विड का कम पार्टिकल्स होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। होगी? यस मिस। समझ में आ रहा है बात? यस मिस। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हिंदी में बोले, अगर सिंपली वेरी सिंपल, तो गाढ़ा जिसको बोलते हैं, मतलब कौन सा कितना गाढ़ा, विच वन इज मोर थिकर। जो ज्यादा थिक लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा थिन लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। हैव यू गाइस सीन ग्लिसरीन? यस मिस। ग्लिसरीन देखा है? वेट, लेट मी ब्रिंग अ वाटर बॉटल। वेट। हम 14 खा रहे होंगे, तो एवढा हम अकेले नहीं खाएंगे। See, this is a water bottle. Okay, पूरा दिख रहा है water bottle. यस And मिस। this is a glycerine. This is a glycerine. This is actually glycerine. Okay. Glycerine का liquid दिख रहा है तुम लोगों को? कहाँ पर है? लिक्विड बहुत कम है एक्चुअली, यहाँ पर है लिक्विड, नीचे में। अब ये क्या है, ये वाटर थिनर है, ये ऐसे चला जा रहा है, सीधा चला जा रहा है। और ये लिक्विड जो ग्लिसरीन है, वो क्या, जाने के लिए देखो कितने टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है जाने से। यस ये मिस। थिक है, ये ग्लिसरीन देखो थिक दिख रहा है। Am I able to make you understand? Is it यस। visible to you? समझ आ रहा है कि ये थिक है? It is thick. See, this is thick. It's not going so smoothly as this is going. This is going because ये इसकी density कम है. This is thinner and this is thicker. See its walls. See the drop. See the drop. See the drop. Is it going smoothly? No. See the drop. See the wall. You able to see it? यस मिस। दिख रहा है? दिख रहा है? सिद्धार्थ Yes, miss. दिख रहा है? इसका देखो, इसका वॉल्स देखो, इसके वॉल्स पे वाटर रहेगा ही नहीं, बिकॉज ये इतना थिन है कि ये चला जाएगा। मींस डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इस ग्लिसरीन की ज्यादा है, इसकी कम है। सी Yes. सी इट्स वॉल्स, ये कितना थिक है, ये स्टिक हो गया वॉल पे, हो गया ना? Yes, एंड miss. दिस इज वेरी थिन। एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट Yes, इज miss. द डेंसिटी? तो जो जितना थिक होगा, जो जितना गाढ़ा होगा, गाढ़ा बोलते हैं ना हिंदी में, जो Yes. जितना थिक होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो जितना थिन होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। तो लिक्विड प्रेशर जो है वो डेंसिटी के साथ इंक्रीज करेगा। जो जितना गाढ़ा होगा,
this one is thicker. So definitely this is creating more pressure on its walls than the water bottle, than this water bottle. It is very thin. It समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Since this is the thicker one, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पार्टिकल्स ज्यादा हैं. इसका जो छोटा वॉल्यूम है, एक छोटा सा वॉल्यूम अगर मान लो, तो पार्टिकल्स ज्यादा है बिकॉज इट इज थिक. ये मोटा है, तो ये अगर मोटा है तो ये अपने वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है कंपेयर टू दिस वन बिकॉज दिस इज थिनर. ये थिन है तो इसके छोटे छोटे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये प्रेशर कम क्रिएट कर रहा है. बात समझ में आ रही है? Yes, miss. पूरा क्रिस्टल क्लियर? Yes, miss. Miss. अगर मैं बोलूं कि मुझे समझाओ तो मुझे समझा पाओगे वापस से घूम के? Yes, miss. Yes, miss. समझा पाओगे? Yes, miss. ओके, कोई डाउट नहीं है मन में? अब एक काम करना, दोनों के दोनों आज जाकर के जो डेंसिटी वाला कंसेप्ट है ना, दोनों घर में मम्मी को समझाना या फिर पापा को, किसी को भी, ठीक है? और जब वो लोग समझ जाएं तुम्हारा कंसेप्ट, then I'll understand that I have made you understand. Okay? Okay, miss. Okay. जाके किसी और को समझाना, तब अगर वो समझ जाते हैं then I will succeed in my class today. Okay? कुछ पूछना है? आप लोग डर रहे हो क्या मेरे से? You guys are not interacting with me. Ask me questions. Ask me something if you are not able to understand. No interaction. हाँ बोलो. मैम अगर कोई दो कंटेनर में जैसे एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है, तो उसमें हम लोग पता लगाएंगे कि किसका डेंसिटी ज्यादा है? वो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में बता देगा. वो आपको बता देगा कि क्वेश्चन में कि अच्छा देखो, सिंपली अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो ग्लिसरीन और वाटर दिया है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट everyone around the world knows the density of glycerin is higher because it is a thick material, right? But if it gives turpentine oil or kerosene oil or something like different kinds of liquids, so they will mention in the question that density of this material is high or this is low. Okay, they'll mention it in the question. Okay, चलो ये लिखा आप लोगों ने? Liquid pressure increases with the increase in density of the liquid. Yes, miss. Okay. चलो अब लिखो, अब हेडिंग डालो consequences. अच्छा एक काम करो, वेट सिद्धांत, Yes, miss. एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? Yes, miss. मुझे डेंसिटी निकाल के बताओगे? Yes, miss. डेंसिटी निकाल के बताओगे एक मटेरियल का अगर दूं तो? Yes, miss. अगर मैंने मास दिया है 1 kg और वॉल्यूम दे रखा है 100 मीटर क्यूब, तो मुझे डेंसिटी बताओ तो उस मटेरियल का कितना होगा? मतलब इट्स अ रफ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग जस्ट randomly, don't write it in your copy, otherwise if you will write, I don't have any issues. I am providing you the question. If a substance is having mass of 1 kg and volume of 100 meter cube, density will be what? Answer me. One per 100 meter cube. What? 1 kg per 100 meter cube. 1 kg per 100 is okay, but solve it.
Solve it. Huh? Simplify. Shweta, you too solve it. बेटा हुआ? यस मिस। कितना हुआ बताना? मैम 1 मिनट। बोलो। मैम Speak 1 out, के dear. बोलो। 1? Speak out, dear. सिद्धार्थ, नहीं हुआ? ये कह रहे हो ना आप? सिद्धार्थ यही बोल रहे हो ना? 1/100 तो? मैम 0.001। 0 पॉइंट कौन बोला ये? 0.01। यू श्योर? तुम लोग पहले डिसाइड करो कितना होगा। मैम मास वाज 1 kg। Dear, it's as simple as that. 0.01 kg per meter cube में इतना सोचने वाली कौन सी बात है? 100 है ना? 2 0 है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। सिंपल। समझ में आया? सिद्धार्थ, यस मिस। क्लियर हुआ बेटा? मिस मैंने 0.01 ही तो बोला। तुमने बोला था? यस मिस। ओके चलो, मैंने सुना नहीं। श्वेता, क्लियर हुआ? यस मिस। चलो अब हेडिंग डालो जो मैं लिखा रही थी। Consequences of liquid pressure. Consequences mean बोलो। Effects. इफेक्ट, हाँ। एप्लीकेशन, इफेक्ट, वेरी गुड। श्वेता, म्यूट क्यों है आपका माइक? I asked you guys to unmute yourself. श्वेता, वो एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो बी रिस्पॉन्सिव व्हेनेवर आई आस्क यू ना टू रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो यू कैन म्यूट, ओके? ओके। कंसिक्वेंसेस में क्या देख सकते हैं हम लोग? एक पॉइंट लिखो, लिखाती हूँ। थिकनेस ऑफ walls of a dam is increased towards the bottom. लिख के बताना। Yes miss. यस मिस। दोनों ने लिख लिया ना? यस मिस। Yes miss. अब बताओ, एक डैम जानते हो ना, बांध जिसको कहते हैं हम लोग? यस मिस। उसका जो फिगर होता है वो कैसे बनाया हुआ रहता है?
माइथन गए हो कभी, दोनों में से कोई? Yes, miss. नहीं गए हो ना? ये जो वॉल है ना, गए हो तो कभी देखा है माइथन डैम में ये ऐसे ऐसे यहाँ से पानी बहता है, वाटर मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज द वॉल, दिस इज द डैम, this is the dam, these are the bricks, these are the bricks, this is the dam. Why this dam is made in this manner? बताना जरा कि डैम ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर या इस पोजीशन में लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि डेप्थ क्या है, कम है, उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पर होगा, और सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा ना, क्योंकि हाइट लिक्विड की ज्यादा हो जा रही है, इतनी हाइट हो जा रही है, इतनी हाइट अगर हो जा रही है तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो डैम के विड्थ को हम लोगों को एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये इस प्रेशर को काउंटर कर पाए। अगर इसका विड्थ कम रहेगा तो हाईली पॉसिबल है कि वाटर का जो प्रेशर होगा उसकी वजह से ये डैम टूट जाए, टूट के पानी निकल जाए, पॉसिबल है ना? तो इस वजह से हम लोगों का जो विड्थ होता है नीचे में वो हम लोग ज्यादा करके रखते हैं ताकि हमारा जो प्रेशर है वाटर का वो ये डैम जो है वो एनकाउंटर कर पाए। क्लियर? Yes, miss. Am I clear to both of you guys? Yes, miss. मैम आपको क्लियर? हाँ बोलो मेरा मैम, आपका पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, अभी क्लियर है? नो मिस। Okay, I guess it's network problem there. दोनों माइक म्यूट करो। स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया है। अपना अभी देखो तो, अभी क्लियर है? नो मिस। इजी है नहीं, बहुत इजी। ये राइटिंग में जो लिखा हुआ है वो भी इजी आ रहा है? यस मिस। आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो तो बेटा, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? ओह गॉड, एक्चुअली यहाँ पे थंडर एंड स्टॉर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बाहर, इस वजह से नेटवर्क इज। राइटिंग भी क्लियर नहीं जो मैंने लिखा है, कंसिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। मैम क्लियर उतना नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है। और ड्राइंग समझ में आ रहा है? यस मिस। देखो तो अभी समझ में आ रहा है ड्राइंग? यस ड्रॉ करो दोनों। दोनों लोग ड्रॉ करो। करके बताना क्या बोला मैंने, समझ में आया? मेरा कंसेप्ट समझ में आया जो मैंने समझाया? यस मिस। यस मिस। मैं फिर से बोलूं या फिर रहने दो? मैं बोलूं फिर से? नो मिस, इट्स ओके। नहीं बोल। इसको बना लिया तुम लोगों ने? यस मिस। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा? यस मिस।
लिखो the pressure exerted by the pressure exerted by the weight of the atmosphere मिस आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। the pressure exerted by the weight of the atmosphere or the pressure within the atmosphere of the earth or the pressure within the atmosphere of the earth is known as atmospheric pressure. The pressure exerted by the weight of the atmosphere or the pressure within the atmosphere of the earth is called atmospheric pressure. हुआ? यस मिस। हो गया। अभी तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोग ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे सिर के ऊपर 200 किलोमीटर ऑफ एयर है that is exerting a pressure on your head. Are you guys able to feel that? नो मिस। नहीं फील हो रहा है ना? But actually there is almost 200 kilometers of Earth's atmosphere. Okay, and Earth's atmosphere consists of air particles, air molecules, and each one of the particles is creating a pressure on our head. That is very true. That is only known as atmospheric pressure. The pressure created by atmosphere is known as atmospheric pressure. अब atmosphere में भी तो air है। अच्छा, what is atmosphere? ये पता है? अगर कोई पूछे कि अच्छा एक काम करो, कहाँ तक लिखा? इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा ना आप लोगों ने? यस उसके मिस। बाद फुल स्टॉप डालो और लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज barometric pressure. BAROMETRIC, barometric pressure. लिख लिया? यस मिस। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो the envelope, ENVELOPE, the envelope, yeah, we may call it envelope, the envelope of air around Earth, the envelope of air around Earth is called atmosphere. अच्छा, तुम लोग आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते गए, घर पे किसी ने पूछ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पढ़कर आए हो, एटमॉस्फेयर क्या होता है बताओ?
तो क्या बोलोगे? बोलो, स्पीक आउट। मैम कैन आई से स्पीक आउट। द लेयर ऑफ गैस अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर? अर्थ में जितना एयर है, एयर is creating an envelope, मतलब air is creating a surface. This is called simply the atmosphere. The sphere of air in our earth is known as atmosphere. As simple as that. Clear? Is that clear? यस मिस। Okay. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? अब मान लो कि एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में तो पार्टिकल्स होंगे, एयर तो होता है ना, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, exhaling carbon dioxide. There is 78% of nitrogen present. I hope you guys know about it. You know, na? There is 21% oxygen, 78% carbon dioxide, and 1% of the mixed other gases which contains argon, carbon dioxide, methane, and all those things. यस मिस। होता है ना? हाँ, तो जब इतना है, मतलब ऐसा है, तो एटमॉस्फेयर में एयर है। जब एटमॉस्फेयर में एयर भी है तो उसका तो प्रेशर होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर। तो लिक्विड का प्रेशर तो पढ़ लिया, अब एयर का प्रेशर कैसे होगा? एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब प्रेशर भी होगा। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा उसको सिंपली बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट माय पॉइंट? यस मिस। उसी को हम लोगों ने डिफाइन करा है, तो वैसे लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर or the pressure within the atmosphere of the earth is known as atmospheric pressure. The atmosphere is not only creating pressure over our heads only, सब कुछ पे, whatever the things is present behind us, means present near us, कुछ भी। फोन लेकर पढ़ रहे हो ना, फोन के ऊपर भी तो 200 किलोमीटर का एयर है कि नहीं? So that 200 kilometers of air is also creating a pressure on your phone. That 200 kilometers, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? No, miss. Okay, that 200 kilometers of air is also creating a pressure on this pen. It is also creating a pressure here also, here also, here also. Means each and everywhere there is an atmospheric pressure. होता है? यस Yes, मिस। miss. चलो एक और डेफिनेशन लिख लो। ये वाली डेफिनेशन मैं अगली क्लास में कराऊंगी। थ्रस्ट पढ़ा है आप लोगों ने? थ्रस्ट तो पढ़ा है ना? यस मिस। Yes, miss. तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर? मैम मे आई आंसर? हाँ श्योर। Thrust is the force acting normally on the surface. एंड प्रेशर इज Pressure thrust per unit area is called pressure. thrust acting per unit area is known as pressure. Okay. अच्छा, what is the who said this? Shweta said this, na? Yes, miss. हाँ, Siddharth, now you speak up. What is the SI unit of thrust and what is the SI unit of pressure? Siddharth? SI unit of thrust. हाँ, SI unit of thrust is? Hello. हाँ बोलो बेटा। Miss, the SI unit of thrust is Newton, and the SI unit of pressure is Newton per meter square or Very good, Pascal. very good, very good, very good. चलो, इसका मतलब आप लोगों का थ्रस्ट क्लियर है। एक काम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द thrust on
यूनिट एरिया लिख रहे हो तो दोनों? Yes, miss. Yes, yes. The thrust on unit area of the earth's surface due to column COLOUMN column, rows and columns, पता है ना? Yes, miss. That column you will write. The thrust on unit area of Earth's surface due to column of air is also known as atmospheric pressure. अब जब तुम लोगों को थ्रस्ट पता है, तो थ्रस्ट अगर यूनिट एरिया पर जो एक्ट कर रहा है ड्यू टू जो एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट काम कर रहा है उसको भी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, miss. Clear? Simple. Means Yes. these are the different definitions. You guys, if you want, you can use any of the definitions. I am just giving you multiple definitions to mug up so that it's clear for you to remember everything. Okay? एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का एक सिंपल होता है, उसके नीचे लिखो ना, this is it visible? Yes, miss. Yes, miss. 10 to the power 5 Newton per meter square. This is about means atmospheric pressure on our earth. This has a normal value, मतलब natural value of 10 to the power 5 Newton per meter square. Because atmosphere में pressure कितना होगा हमें पता होगा ना, क्योंकि atmosphere के हर एक particle के बारे में we have calculated that this layer contains this much oxygen, this much particle, that means each and everything is calculated. So we have calculated the Earth's atmospheric pressure as 10 to the power 5 Newton per meter square. Okay? Yes, miss. Yes, miss. Okay, clear? Thus, नीचे लिखना thus thrust of ten to the power 5 Newton acts on every 1 meter square acts on every 1 meter square of the surface acts on every 1 meter square of the surface of the object on Earth. Thus, thrust of 10 to the power 5 Newton acts on every 1 meter square of the surface of the object on Earth. Clear? Yes, Yes, miss. miss. लिखा दोनों ने? Yes, miss. 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को मैंने लिखाया कि पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स, कितना प्रेशर एक्ट करेगा हमारा 10 to the power 5 न्यूटन. वही मैं लिखा रही हूँ कि 10 thrust of 10 to the power 5 न्यूटन
acts on every मतलब per every 1 meter square of the surface of objects on the earth. Clear? Yes, miss. पूरा समझ में आया दोनों को? कोई डाउट कहीं भी, जरा सा भी? No, miss. ओके अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की अभी तुम लोगों का स्कूल चल रहा है या छुट्टियां हो गई हैं? मैम छुट्टी चल रही है अभी। छुट्टी चल रही है, तो तुम लोगों का सिलेबस आई गेस पीछे है ना फिजिक्स का? Yes, miss. So if I schedule your classes in any of the weekdays in the morning, so will you be able to attend the class? Yes, miss. Not any day specific? Do you have any problem on any of the particular day specific? No, Or miss. I can schedule it any day? I can schedule it any day? Yes, miss. Okay, then I'll inform you in the group accordingly that when I'm scheduling your class, so I'll inform you. I'll let you know in the group. So join the class accordingly, okay? Because आपका syllabus अभी शायद मेरे ख्याल से I guess it's lagging behind. So I need to take some extra classes so that to cope up with the speed, okay? Okay, miss. Okay. So shall we conclude our class today to here only? In next day, I will take the daily life application, standard value of atmospheric pressure, and ये चैप्टर खत्म करेंगे. कितने चैप्टर्स हैं आप लोगों के सिलेबस में? मैम 4 chapters है। ये कितना नंबर चैप्टर है? ये फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट ही चल रहा है बेटा अभी? यस मैम। तो आप लोग तो काफी पीछे चल रहे हो अभी. चल रहे हो ना? यस मैम। चलो कोई ना, हम लोग कर लेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के और फिर शेड्यूल करके फिर हम लोग कर लेते हैं. फिर मैं पढ़ा दूंगी तुम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है. और तुम्हारी फिजिक्स की क्लास आज से मैं ही लूंगी, ओके? ओके मिस। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम नो मिस। इंटरैक्टिंग विथ मी? कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई? वाज द क्लास स्मूथ? समझ में आया सब? यस मिस। ओके. ये सिद्धार्थ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलो सिद्धार्थ. Yes, miss. समझ में आया? कोई दिक्कत? No, miss. पक्का ना? Yes, miss. चलो क्लास कंक्लूड करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके मिस। Yes, miss. ओके ओके. टेक केयर. हाँ, बाय. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, miss. ओके. हाँ.